خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں فیصل آباد میں بلدیہ کی لاپرواہی. کئی روز بعد بھی سمندری روڈ کے سیم نالے سے نکالا گیا کچرا نہ اٹھایا جا سکا. سڑک پر کچرے کی موجودگی کے باعث شہری پریشان دکھائی دیے. تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں، ایسا کہنا تھا شہریوں کا. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے جلد از جلد کچرا ٹھکانے لگانے کا مطالبہ کر دیا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 احمد سعد سے جو وہاں موجود ہیں. جی احمد، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، جیسے کہ اس ٹائم ہم موجود ہیں یہاں پہ سمندری روڈ پہ. یہاں پہ جو ہے وہ یہ سیم کا گندا نالا تھا جہاں پہ جو ہے کئی روز پہلے جو ہے کچرا نکالا گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے جو ہے اٹھایا نہیں گیا. یہاں پہ جو ہے وہ کاروباری طبقے کے لوگ اور دیگر جو لوگ ہیں شہری ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے ہم تعفن زدہ ماحول پہ رہنے پر مجبور ہیں. یہاں پہ گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو کہ مختلف امراض میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتی ہیں. اچھا بھائی جان، یہ بتائیے گا کہ یہ باہر کچرا نکال کے رکھ دیا ہے، اچھا اقدام تھا کہ باہر نکال دیا، پر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنے ادھر؟ اس میں تو پہلے نمبر پہ ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے. یہ گندگی کی وجہ سے زکام ہو رہا ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کرنا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ جلدی اٹھا نہیں رہے کچرا. اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اچھا بھائی جان، یہ بتائیے گا کن مشکلات کا سامنے؟ بدبو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سمندری روڈ پہ، وہ اینڈ تک کچرا ایسے ہی پڑا ہے، تو کن مشکلات کا سامنا؟ چلو بھائی، یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. چلو خالی تو کر لیا، ہوں اٹھانا بھی ہے کہ ہوں سانو بیمار ہی کرنا. سارے دکاندار سارے بیمار ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہ خیال ہے کہ فائدہ کی ہوا پھر یہ کٹن کا کی خیال ہے؟ یا تو یہ کہ صفائی کرو، نہیں کرنا تو پھر یہ جو کٹیا ہوا کی خیال ہے. یہی مشکلات ہو رہے ہیں کہ سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. کی خیال ہے؟ حکومت تو کی مطالبہ کرتے ہو اس والے ضلع انتظام؟ مطالبہ کرتے ہیں کٹیا تو صفائی کرو، صفائی تو سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. جیسے کہ ادھر شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا اقدام تھا کہ جو یہ سیم نالے کو صاف کیا گیا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی جو نکالا گیا کچرا اسے ابھی تک یہاں سے نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں بدبودار ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں. یہاں پہ تعفن زدہ ماحول ہے، بدبو اور گندگی کے ڈھیر ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں سانس لینا بھی دشوار ہے. ہمارے بچے جو ہیں، ہم خود جو ہیں، وہ مختلف امراض میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں. کئی بار جو ہے متعدد بار جو ہے درخواست بھی کی، لیکن اس کے باوجود جو FWMC اور ضلع انتظامیہ ہے وہ اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہ نہیں اٹھایا جا رہا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے کاروباری طبقے دکانیں بھی ہیں، فرنیچر مارکیٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کافی متاثر ہو رہا ہے. یہاں پہ لوگ گندگی اور بدبو کے باعث جو ہے یہاں پہ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے. ان کا حکومت اور ضلع انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد یہاں پہ جو کچرا ہے، گندا جو کچرا یہاں پہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں، اس کو صاف کیا جا سکے تاکہ ہم تعفن زدہ ماحول پہ رہنے سے بچ سکیں. اور یہاں پہ جو ہے ہم مختلف امراض میں اس کے باعث جو ہے کچرے کے باعث جو ہے گندگی کے باعث جو ہے مختلف امراض میں رہنے پر مجبور ہیں. تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ایک جانب جو ہے ہمارا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب ہم خود یہاں پہ گندگی اور بدبودار ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں. تو FWMC جس پہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کی جانب سے جو ہے کوئی بھی اس پہ جو ہے وہ ٹھکانے جو کچرے کو ٹھکانا نہیں لگایا جا رہا. ان کا یہی حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جتنی جلد ہو سکے اس کچرے کو یہاں سے ٹھکانے لگایا جا سکے تاکہ ہم یہاں پہ سکون کی زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ احمد سعد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. محکمہ بلدیات نے پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں میں تعینات پر ماننٹ ورک مین کے لیے باقاعدہ میکینزم تشکیل دے دیا ہے. اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جب بات کریں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پرماننٹ ورک مین ہیں ان کے لیے ایک نیا جو ہے لایا ان کے لیے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ ترتیب دے دیا گیا، جہاں پر ان کے لیے جابز کے جو بیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی چھٹی لینے کا پلان ہے یا ریٹائرمنٹ ہوگی یا جو ان کے اسپیشلی گریجویٹی کے حوالے سے یا پینشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے زیر بحث آ گیا اور نئے سرے سے ان کا اجرا کر دیا گیا کہ وہ ملازمین کب کب چھٹی کر سکیں، کتنی ان کی ڈیوٹی ہوگی. 8 گھنٹے تک ڈیوٹی دینا لازم ہوگا، شفٹوں میں کام ہوگا. اور یہ تمام جتنی بھی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے جتنے بھی ورک مین ملازمین جو پرماننٹ کام کرتے ہیں ان کے لیے تمام کے لیے یہ لائحہ عمل بنایا گیا، شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کیا گیا تاکہ ان کے لیے جو چھٹی کا مسئلہ آتا ہے، تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، وہ تمام مسئلے حل ہو سکے. اور اس کے علاوہ جو ان کی گریجویٹی یا ان کی پینشن کا مسئلہ آتا ہے وہ بھی اس میں حل کیا جا سکے. تمام چیزیں وضاحت. بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات کے لیے. پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے دسمبر 2022 کی سنیپ ایکوریسی رپورٹ جاری کر دی ہے. فیسکو کی 140 سب ڈویژن کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں.
98% से कम एक्यूरेसी पर मुतल्लिका मीटर रीडर्स को स्नैप अलाउंस नहीं मिल सकेगा। फेस्को की 13 सब डिवीजन की स्नैप एक्यूरेसी 98% से भी कम रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने फेस्को की स्नैप एक्यूरेसी की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। फेस्को की 140 सब डिवीज़न में से जो है वो 127 सब डिवीज़न की स्नैप एक्यूरेसी जो है वो 98% से ऊपर है, जिसके मीटर रीडर्स को जो है वो स्नैप अलाउंस मिलेगा, जबकि 13 सब डिवीज़न ऐसी हैं जो अपने टारगेट्स पूरे करने में नाकाम रही है, जिनकी स्नैप एक्यूरेसी 98% से कम है। उन 13 सब डिवीज़न के मीटर रीडर स्टाफ को जो है वो स्नैप अलाउंस फ्राहम नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि स्नैप से मुतल्लिक जो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि सार्फिन को जो है वो रिलीफ फ्राहम किया जा सके और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। फेस्को की 127 सब डिवीज़न की स्नैप एक्यूरेसी 98% से ज़ायद है और 13 सब डिवीज़न दफातर ऐसे हैं जो 98% स्नैप एक्यूरेसी करने में नाकाम रहे हैं, जिनके मीटर रीडर स्टाफ को जो है वो स्नैप अलाउंस हरगिज़ फ्राहम नहीं किया जाएगा जब तक वो स्नैप एक्यूरेसी में बेहतरी नहीं लाएगी। स्नैप एक्यूरेसी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया अवैस आपका। महकमा सुई गैस की जानिब से शहरियों को कंट्रोल रेट पर एलपीजी सिलेंडर की फराहमी जारी है। नए कनेक्शनों के लिए डिमांड नोटिस की अदायगियां करने वाले दरख्वास्त गुजारों के वाजिबात गैस सिलेंडरों की सिक्योरिटी कीमत में एडजस्ट किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी SNGPL की जानिब से मौसम सरमा में सुई गैस बहरान के बायस शहरियों को उनके घर की दहलीज पर LPG सिलेंडर पहुंचाने की कैंपेन शुरू की गई थी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ फोकल पर्सन SNGPL राशिद साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो बताइएगा कि अब तक कितने लोगों ने SNGPL की सर्विसेज हासिल की हैं सिलेंडर्स के हवाले से, और रेट्स के हवाले से बताइएगा कि मार्केट की निस्बत जो है क्या फैसिलिटेशन सारिफीन को दी जा रही है SNGPL की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमने अभी तक फैसलाबाद जो सिटी है, सिटी एरिया हमारा रेडियस है 10 किलोमीटर, इसके अंदर हम सिलेंडर जो है डोर स्टेप पे कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है कि हमारी एक क्वालिटी और क्वांटिटी जो है हम उस पर SNGPL कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अब हम डोर स्टेप पे इसलिए दे रहे हैं कि जहां शॉर्टफॉल है, गैस का एक शॉर्टफॉल है और हम उसको मीट करने के लिए अपने कंज्यूमर्स को ये सहूलत दे रहे हैं। कंट्रोल रेट पे है, ज़बरदस्त है। सेकेंडली हम इसकी सेविंग के लिए, अब आप इसके ऊपर गीज़र चलाते हैं तो गीज़र के लिए कोनिकल बैफल्स भी, जिससे 50% गैस की सेविंग होगी। वो आप सिलेंडर पे चला रहे हैं, वो आप SNGPL पे नेचुरल गैस पे चला रहे हैं, उसका भी ये इसका फ़ायदा है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इसकी सिक्योरिटी का क्या तरीक़ेकार है, और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने आपको डिमांड नोटिस की मद में फ़ीसें जमा करवा रखी हैं मगर उनके पाबंदी के बायस कनेक्शन नहीं लग रहे, क्या उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी कोई ख़ास स्टेप जो है वो सुई गैस ने उठाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ख़ास स्टेप उसमें ये है कि जिसने हमें डिमांड नोट्स के पैसे जमा करवाएं, हम उससे कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, वो हमारा कंज्यूमर है और उसके जो कनेक्शन है उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा कि जब कल हम कनेक्शन ओपन होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ओपन होते हैं, तो उसको कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसको ये सिलेंडर वो उसको हम इसी अमाउंट में फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। SNGPL हुक्काम के मुताबिक 1 महीने के दौरान 2000 से ज़ायद शहरियों ने फैसलाबाद में सुई गैस से जो कंट्रोल रेट पर सिलेंडर्स हैं वो हासिल किए हैं, जबकि इस हवाले से SNGPL हुक्काम का ये भी कहना है कि ऐसे दरख्वास्त दहिंदगान जिनकी जानिब से डिमांड नोटिस अदा किए गए थे मगर पाबंदी के बायस उनके कनेक्शन नहीं लग सके थे, तो उनके जो वाजिबात है वो सिलेंडर शहरियों को कंट्रोल रेट पर LPG की फराहमी जारी है। उमैर इसमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार 13 फरवरी तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। दुगना फीस के साथ 24 जनवरी, जबकि 3 गुना फीस के साथ 3 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के दाखिलों के शेड्यूल के हवाले से उम्मीदवार 13 फरवरी तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे, 2 गुना फीस के साथ 24 जनवरी तक, जबकि 3 गुना फीस के साथ
3 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। और आगे आपको बताएं, फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में ज़राअत के सिविल वर्क्स के काम में सुस्त रवि आ चुकी है। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने काम मुकम्मल ना करने पर महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब कर लिया है। स्कीमों की वर्क ऑर्डर की कॉपी, बजट तफसीलात और मटीरियल टेस्ट रिपोर्ट्स भी मांग ली हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़राअत की स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं। डायरेक्टर फिनांस कमिश्नर ऑफिस की जानब से एक्सिन बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कोट किया गया कि फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर में आरी सेंटर और रिसर्च स्कैन सेंटर और आरी सेंटर के गिर्द बाउंड्री वाल की जितनी भी स्कीमें हैं वो ताहाल जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। और डायरेक्टर फिनांस की जानब से एक्सिन बिल्डिंग को जो है वो मरासला जारी करते हुए कहा गया है कि जितना भी काम है वो सुस्त रवि का शिकार है और जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो स्लो है। और एक्सिन बिल्डिंग को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जितनी भी स्कीमें हैं उनका जो है ब्रीफ नोट के साथ जो है वो माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट साल की जाए और जितनी भी स्कीमें जो है वो पाया तकमील तक पहुंचने को बाकी हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और रिसर्च कैन और आरी सेंटर, बाउंड्री वाल समेत जितनी भी फैसलाबाद डिवीजन भर में जितनी भी ज़राअत के हवाले से जो है वो स्कीमें हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उनको। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। टोबाटेक संघ में महकमा ज़राअत मकई की पैदावार में इजाफे के लिए कोशिश है। फसल काश्त करने के लिए हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा बीज मुतारिफ करवा दिए गए हैं। मकई के मंजूर शुदा बीज काश्त करने से फसल की पैदावार में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो है बहारिया फसलों की काश्त का सिलसिला जारी हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बहारिया फसलों की काश्त के लिए भी मंजूर शुदा बीज की अक़साम बता दी हैं और हदायत भी जारी कर दी हैं। इसी वाले से मैं इस टाइम महकमा ज़राअत के ज़िले दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद असलम मौजूद है। मकई की फसल जो बहारिया काश्त शुरू होने जा रही है, सर बताइएगा इस वाले से कौन कौन से हुकूमत ने मंजूर शुदा बीज बताए हैं मकई की फसल के लिए और क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? सबसे पहली तो बात यह कि बहारिया मकई की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है, तो काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि आप महकमा ज़राअत की जो मंजूर शुदा अक़साम है उनका 8 से 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ वट्टों पर काश्त करें। और इन मंजूर शुदा अक़साम में YH 1898, 5427, FH 988, FH 1046 ये हाइब्रिड अक़साम है और इनकी काश्त करने से पैदावार अच्छी आती है। और इसके अलावा गुजारिश है कि काश्तकार भाई वक्त काश्त कम से कम 2 बोरी DAP और 2 बोरी पोटाश फी एकड़ ज़रूर डालें ताकि उनकी पैदावार अच्छी आ सके। तो अगर कुछ दोस्त हैं वो वक्त बजाई खाद नहीं डालते, तो अगर काश्त के वक्त खाद फास्फोरस और पोटाश न डाली जाए तो पैदावार में कमी आ जाती है। तो लिहाजा जो सिफारिश करदा खाद की मकदार है वो वक्त बजाई ही इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि 8 से 10 किलोग्राम जो बीज है वो वट्टों पर काश्त करें और मंजूर शुदा बीज के साथ अगर काश्त बहुत शुक्रिया उसामा यासीन अपडेट करने के लिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती उम्मत मुस्लिमा का गम और गुस्से का इजहार। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी भी आग बगोला हो गई। मारूफ ताजिर और इंसानी हक़ों की तंजीम के चेयरमैन राना अब्दुल गफूर का हुकूमत से मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं सिटी 41 नुमाइंदा शराज पट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। इस वक्त जो खास तौर पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उस पर मुसलमान जो हैं वो इस वक्त इंतहाई गमज़दा दिखाई दे रहे हैं और शदीद गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। और इसी हवाले से फैसलाबाद की ताजिर बरादरी की जानिब से भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जितनी भी इस वाक़े की मजम्मत की जाए वो कम है। इंसानी हुकूक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ताजिर बरादरी को, सनतकारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, खास तौर पर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट माना जाता है कि वो इंसानी हुकूक के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल दरामद करते हैं, लेकिन इस वक्त इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से हमारी उस किताब जिसको हम अपने दिल से तस्लीम करते हैं और अल्लाह ताला की किताब है, उसकी इस तरीके से बेहुरमती किस तरीके से मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, क्या कहेंगे? जी भट्ट साहब, मैं जो है ह्यूमन राइट्स का फैसलाबाद का चेयरमैन भी हूँ। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े लीडर बनते हैं ह्यूमन राइट्स के हमारे यूरोप वाले जितने भी हैं। छोटी छोटी सी बात पे अगर यहाँ पे लेबर लॉ का मामला आ जाए कि चाइल्ड लेबर की वजह से जी आप यहाँ पे हमारे ऑर्डर मनसूख कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ ये देखें
पिछले दिनों फ्रांस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए थे जिसमें पूरी दुनिया में गमो गुस्सा था, मुसलमानों में और एहतजाज भी किया गया। अब उससे बढ़ के हमारी जो इल्हामी किताब है जिसको सारी दुनिया सारे मज़ाहिब वाले भी मानते हैं, उसकी बेरहमती की गई है। ये इंतहाई एक मज़मूम उन्होंने काम किया और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया में इसके खिलाफ मजम्मत भी हो रही है, मुजाहरे भी हो रहे हैं। ये लोग बार बार इस तरह के काम कर रहे हैं, इससे लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है और साथ फिर ये लोग कहते हैं कि ये लोग इंतहा पसंद हैं। इंतहा पसंदी का इसमें क्या मामला है कि आप देखें, आप किसी के प्यारी हस्तियां हैं उनके बारे में जब आप इस तरह की मजमूम हरकत करते हैं, और दूसरा हमारी इल्हामी किताब जिस पे हमारा ईमान है और सारी हमारी बेस ही उसके ऊपर है, आप उसके बारे में इस तरह का काम करेंगे, उसकी बेरहमती करेंगी तो लोगों में गमो गुस्सा लाजमी तौर पे पाया जाएगा। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पे इंशाल्लाह ताला आज हमारी मीटिंग भी हो रही है और इस पे पुरजोर एहतजाज भी किया जाएगा। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की जा रही है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिस लिया जाए। अपने मुल्की सतह के ऊपर भी हुकूमत से अपील की जा रही है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिस लेते हुए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस कैंपेन को चलाया जाए कि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए इस नौयत शहराज पर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। नौजवान नस्ल में मुस्बत सरगर्मियों और खेलों के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। स्कूल्स में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल समेत मुतअद्दिद खेल शामिल होंगे। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का खेलों के मुतल्लक जो है वो बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। स्कूल्स में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बाकायदा तौर पर कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि पूरा साल में जो है वो खेलों की सरगर्मियां जो है वो करवाई जाएंगी, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, एथलीट्स, बैडमिंटन, स्क्वैश और इसके साथ टेबल टेनिस के जो है वो मुकाबले करवाए जाएंगे। इसके बाद जो है वो स्कूल के जितने भी मुख्तलिफ एक्टिविटी होंगी उनमें तमाम का एक रीजन के जो है वो मुकाबले करवाए जाएंगे और उसमें बेहतरी करवाने वाले और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जो प्लेयर और जो बच्चे होंगे उनको पंजाब लेवल पर जो है उनके मुकाबले करवाए जाएंगे। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ऐसा कदम है और खेलों के मुतल्लिक ये जो बड़ी खबर है कि अब स्कूल लेवल पर और ग्रास लेवल पर जो है वो खेलों की सरगर्मियां होंगी और बाकायदा तौर पर तमाम वो चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट मुहैया करेगी जो प्लेयर्स को और ख़ासकर स्कूल्स को जो है वो चाहिए होगी। तो स्कूल लेवल में बाकायदा तौर पर उसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो है वो कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसमें जो है वो साल के मुकम्मल तौर पर सितंबर और अक्टूबर में जो है वो वॉलीबॉल, कराटे और रेसलिंग के जो है मुकाबले होंगे, जबकि क्रिकेट और हॉकी के जो है वो ज़िलाई सतह पर जो है वो मुकाबले होंगे। तो इसमें जो है वो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसका जो है ऐलान किया है और मुतल्लिका जो सीईओ होंगे वो इसकी निगरानी करेंगे और तमाम मामलात को देखने के बाद इनकी जो है वो एक्टिविटी करवाई जाएगी और बाकायदा इसकी वीडियो लिंक के जरिए और वीडियो जो है वो पंजाब के सतह पर जो है वो भेजी जाएगी ताकि पता चल सके। स्कूल्स में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। खातीन को हुनरमंद बनाकर पांव पर खड़ा करने का मिशन। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर में खातीन के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। चेयरपर्सन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सोबिया अकील ने सदारत की। की तरक्की के लिए खवातीन का किरदार अहम होता है। इस हवाले से फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खवातीन के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरपर्सन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सोबिया अकील ने की। इनका कहना था कि सेमिनार का मकसद कारोबारी खवातीन को बिजनेस आइडियाज के बारे में आगाही देना है। हमारे चैम्बर की मेंबर्स हैं, हमारी खवातीन जो बिजनेस कर रही हैं, उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से फर्दर जो नए टूल्स आ गए हैं उनके बारे में अवेयरनेस देना था कि किस तरह वो अपने बिजनेस को मार्केट करें और किस तरह वो सेल्स जनरेट करें अपने बिजनेस को फर्दर बेनिफिशियल अपने लिए बनाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सेमिनार में स्मेट स्पीकर उज़मा कमाल ने बतौर स्पीकर अपनी खिदमात सर अंजाम दी, जबकि चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी डॉक्टर नजमा अफजल ने शिरका से खिताब किया और कहा कि हुनरमंद और कारोबारी खवातीन माशरे की तरक्की की अलामत हैं। इसमें हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है कि हाउ टू एनहेंस अवर सेल्स एंड हाउ टू डू द मार्केटिंग। तो उसके डिफरेंट टूल्स हैं मार्केटिंग के, जो कि आज बड़ी अच्छी तरह जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको
आज सिखाया गया है। और उसके अलावा जो सेल्स में हमने अपनी किस तरह बढ़ानी है, अपनी स्किल कम्युनिकेशन हमारे में होनी चाहिए। सेमिनार में शरीक खवातीन ने कहा कि इस तरह के तकरीबात में वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग मिलता है। खवातीन को कारोबारी मौके फराहम किए जाने चाहिए ताकि मुल्क मैशियत में बेहतरी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।